Hi everyone, my name is Sunil Kumar and I'm from the Indirect Tax team of Taxman. I hope you all are healthy and safe. In the recent past, you all must have noticed that a lot of discussion had happened on the classification of the product paratha, and that is because of the recent advance ruling pronounced by the Karnataka Authority of Advance Ruling in case of ID Fresh Foods, where they held that the product paratha cannot be referred as plain chapati or roti, and therefore benefit of lower GST rate would not be applicable on it. So we have analyzed the classification of this product, its applicable GST rate under the GST regime, and is there any exemption available on this product in exemption notification or not, that we have also covered. So in sum, I would say the taxability of the product paratha. Now, before starting our discussion on the topic, I would like to share one thing, that what as a listener you would be getting from this video. Because you may have a client dealing with this product, or you may not have a client dealing with this product, or your company may be dealing in this product, or your company may not be dealing with this product. See, we would be discussing this classification in a systematic way. It would take time. We would cover the classification principles, statutory principle of classification, non-statutory principle of classification, of the Customs Tariff Act, general interpretive rules, explanatory notes, कब उनको रेफर किया जाता है, कैसे किया जाता है. Obviously, relevant parts कोई पूरे नहीं, but हाँ, we would be covering that also. So the point is that this video, this discussion would not primarily be focusing on the classification, but this would also be focusing on the point that how we can determine the GST rate applicable on a particular product under the GST regime. Okay, now let us start the discussion. The product paratha is a amalgamation of two words. First is parat and second is atta. Parat ka matlab layers, atta ka we all know. And this product is prepared with fine wheat flour, that is maida. जो कंपनीज इनको बनाती हैंगी वो इसको हाफ कुक करके लो टेम्परेचर में रखती हैंगी फ्रोजन फॉर्म में. जब आप इसको परचेज करते हैं, बाय करते हैं, तो आपको ये पैक्ड फॉर्म में मिलता है, फ्रोजन फॉर्म में मिलता है. हियर इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पराठा मंगाते हैं, वहां रोटी मंगाते हैं, वहां चपाती मंगाते हैं, दैट एक्टिविटी ऑफ सर्विंग by the restaurant is referred as supply of services, and we are not dealing with that. हम in context of पराठा उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं जहां पे आप फ्रोजन फूड को मंगाते हैं, फ्रोजन पराठा को अपने घर पे मंगाते हैं या परचेज करते हैं. That activity is referred as supply of goods. So we are analyzing the supply of goods part, and that is in relation to unstuffed paratha. Fine. So as I said you that this product is required to be heated before consumption because this is available in frozen form. You cannot eat it directly. It is required to be heated. These are not available in ready to eat form. So in order to determine the GST rate applicable on a particular product, we have to follow 3 steps. So अभी तक हम लोगों ने पहले जो डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने प्रोडक्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग ले लिएगी. नाउ वी आर डिस्कसिंग अ बिट अबाउट कस्टम्स टैरिफ एक्ट, जीएसटी रेट नोटिफिकेशन एंड एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन. फिर हम उसके कंटेंट्स को एनालाइज करेंगे कि वहां पे लिखा क्या है, रिलेवेंट लीगल प्रोविजन, एंड देन विल कम ऑन टू द अदर कमेंट्स पार्ट. So in order to determine the GST rate applicable on a particular product, one has to refer the Customs Tariff Act. And after analyzing the classification, after identifying the chapter heading,
After identifying the tariff item, we go to the rate notification to determine the GST rate applicable on it. The question arises that why we should refer the customs tariff act? Why? What is the need? क्या हम डायरेक्टली रेट नोटिफिकेशन को पढ़ के अपना रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते? सारे प्रोडक्ट तो वहां पे कवर है. The answer of this question would be no. Because if you read the rate notification by virtue of explanation 3 and explanation 4, it provides that for the purpose of classification, in sum I am saying for the purpose of classification, you have to refer the Customs Tariff Act. Therefore, for the purpose of classification, we have to first refer to the Customs Tariff Act. और जब वहां पे हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, then we come to the GST rate notification to determine the applicable GST rate on the product. And after identifying the GST rate, हम लोग exemption चेक करते हैंगे कि क्या कोई exemption अवेलेबल है दिस प्रोडक्ट के लिए या नहीं. अगर exemption अवेलेबल होती है तो आपके ऊपर कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं आती है, अदरवाइज यू वुड रिक्वायर टू पे टैक्स ऑन इट with the GST rate which you have identified. One more interesting point here is this, that अगर आपकी रेट नोटिफिकेशन में किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का कोई रेट दिया हुआ है, साइमल्टेनियसली एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में कोई एग्जम्पशन भी अवेलेबल है, तो इसका यह मतलब नहीं होता कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पॉइंट कि उसका स्पेसिफिक रेट दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, रोटी चपाती का जो रेट है वो 5% है. अगर हम कहते हैं कि रोटी चपाती ब्रेड होती है, जो हम डिस्कस करेंगे अभी, और वो कवर है आपकी एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इस पर रेट आपको दिया गया है रेट नोटिफिकेशन के अंदर, आपको एग्जेम्पशन मिलेगी, विच मीन्स कि आपको टैक्स पे नहीं करना. वाई सर? बिकॉज रेट नोटिफिकेशन इज अ पार्ट ऑफ लेवी. वो तो लॉ मेकर को देना ही हैगा, अदरवाइज उसकी लेवी कंप्लीट ही नहीं होगी. इफ यू रीड सेक्शन 9, इट सेज देयर शेल बी लेवी सेंट्रल टैक्स ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई एट द रेट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट. तो लेवी कंप्लीट करने के लिए रेट तो देना मैंडेटरी है. एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, दैट आपके हर प्रोडक्ट के लिए जीएसटी का रेट अवेलेबल है, हर प्रोडक्ट के लिए. कैसे है वी विल डिस्कस. ओके, सो दिस इज द रेट नोटिफिकेशन. आपकी इसके बाद एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन आती हैगी, उसकी भी एक्सप्लेनेशन 3 और 4 कहती हैगी कि जो भी आइटम्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, टैरिफ आइटम, टैरिफ हेडिंग्स, उनके क्लासिफिकेशन के लिए आपको रेफरेंस लेनी पड़ेगी कस्टम्स टैरिफ एक्ट की. तो वहां पे भी आपको सेम प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ता है. Now, what is the meaning of Customs Tariff Act? So, Customs Tariff Act is a legislation जिसके अंदर आपके सारे के सारे प्रोडक्ट सिस्टमेटिक वे में लिखे हुए हैंगे. जब भी आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो आप अपना क्लासिफिकेशन वहां से करके अपने गुड्स का अकॉर्डिंगली अपने इनवॉइस में उसको मेंशन करते हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये समझने वाला है कि दिस कस्टम्स टैरिफ एक्ट इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय इंडिया. इट इज डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय द वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन. इंडिया हैज अडॉप्टेड दिस लेजिस्लेशन. जो टैरिफ की बुकलेट वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है, that refers as HSN, Harmonized System of Nomenclature. हम प्रैक्टिकल लाइफ में जनरली बोलते हैं कि तुम्हारे इनवॉइस में HSN मेंशन नहीं है, ये टर्मिनोलॉजी गलत है. वी शुड रेफर इट एज HSN कोड मेंशन नहीं है, बिकॉज HSN इज अ बुक जिसमें आपके सारे गुड्स मेंशन हैं. सो वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन ने इस पूरी की पूरी बुक को प्रिपेयर किया है. जनरली 5 साल में आपकी अमेंड होती हैगी, और जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैंगी वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन की, उन सभी कंट्रीज को ये
बुक अडॉप्ट करनी पड़ती हैगी, एंड दैट इज वाई इंडिया इज ऑल्सो अडॉप्टेड, और उसके बेस पे हमारा वर्ल्ड कस्टम्स टैरिफ एक्ट बना हुआ है। नाउ पूरा का पूरा जो कस्टम्स टैरिफ एक्ट है ये डिफरेंट सेक्शंस एंड चैप्टर्स में बटा हुआ है। सेक्शंस मींस सेक्शन बेसिकली कवर्स अ स्पेसिफिक क्लास ऑफ प्रोडक्ट्स, और उसकी जितनी भी कैटेगरी होती हैं वो आपके चैप्टर्स के अंदर आती है। हर सेक्शन के कुछ चैप्टर्स होते हैं जो उसके अंदर कवर होते हैं। ओके, सो इन रिलेशन टू प्रोडक्ट पराठा वी हैव टू इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. फर्स्ट इज chapter 19 and second is chapter 21. Now chapter 19 covers preparation of cereal, flour, starch, milk ऐसे products, and heading 1905 covers bread, pastry, cake, etc. Heading 21, chapter 21, heading 2105 covers food preparations not elsewhere specified. खाने के प्रोडक्ट्स जो कहीं और नहीं दिए गए हैं. तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा प्रोडक्ट जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं ये अगर कहीं और कवर होता है तो उस केस के अंदर 21 हमारे लिए रिलेवेंट नहीं होगा. और जैसे मैंने आपको कहा कि इसके लिए 19 और हेडिंग 1905 रिलेवेंट है. क्यों है, वी विल डिस्कस. तो डिबेट हमेशा यही रहती है कि 1905 में जाएगा या 2106 में जाएगा. ओके, जीएसटी रेट नोटिफिकेशन के अंदर आपकी दो एंट्री रिलेवेंट हैं. फर्स्ट इज एंट्री नंबर 99 कैपिटल है इन शेड्यूल 1 विच कवर्स 3 प्रोडक्ट्स, खाकरा, प्लेन चपाती और रोटी, जिसपे आपका 5% रेट लगता है क्योंकि शेड्यूल 1 के अंदर कवर है. एंड एंट्री नंबर 453 ऑफ शेड्यूल 3 इट सेज कि जो भी प्रोडक्ट आपके और शेड्यूल्स के अंदर कवर नहीं है, आपके टोटल 6 शेड्यूल्स होते हैं, वो इसके अंदर आ जाएंगे. विच मीन्स जनरल जीएसटी रेट ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स इज 18%. और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जीएसटी के अंदर हर प्रोडक्ट का रेट दिया हुआ है, इस रीजन से दिया हुआ है कि अगर कोई स्पेसिफिक रेट नहीं है तो वो एंट्री 453 के अंदर आ जाता है. ओके, नाउ entry number 99 capital A and 453 of schedule 3. As far as the exemption notification is concerned, entry number 97 is relevant, which says bread except when served for consumption and pizza bread. So आप समझ चुके होंगे अब तक कि रोटी चपाती is a form of Indian bread. तो why should not we analyze the exemption notification? We would be discussing this. So अभी तक हम लोगों ने relevant legal principles, legal provisions discuss कर लिए हैं. Chapter 21, Chapter 19 जहाँ पे आपका bread cover है, यहाँ पे आपका food preparation cover हैगा 21 के अंदर. रेट नोटिफिकेशन में हेडिंग नंबर 99 कैपिटल ए के अंदर आपका खाखरा, प्लेन चपाती और रोटी. 453 के अंदर आपका जनरल कैटेगरी रेट, और एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन के अंदर एंट्री नंबर 97. नाउ लेट अस डिस्कस वन मोर पॉइंट इन रिलेशन टू हेडिंग 1905. हेडिंग 1905 का एक्सप्लेनेटरी नोट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ब्रेड्स को कवर करता है. जैसे कि लेट मी रीड दैट. ऑर्डिनरी ब्रेड, ग्लूटेन ब्रेड फॉर डायबिटीज, अनलिमिटेड ब्रेड, क्रिस्प ब्रेड, एटसेट्रा, और भी हैं.
इसको पढ़ के ये लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरी ऑफ ब्रेड्स कवर है, नॉट जो हम डबल रोटी कहते हैं वो, और भी तरीके की ब्रेड कवर है यहाँ पे। ओके, वन मोर पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्लेनेटरी नोट? एक्सप्लेनेटरी नोट आर इशूड बाय कस्टम्स कॉर्पोरेशन काउंसिल। और ये क्या करती है ये एक्सप्लेनेटरी नोट? ये आपको हर एंट्री का जो कस्टम्स में दी है उसका स्कोप और एक्सटेंट बताती हैं। सर इसकी लीगल बैकिंग क्या है? इसकी कोई लीगल बैकिंग नहीं होती हैगी, बिकॉज ये कस्टम्स टैरिफ एक्ट का पार्ट नहीं हैगा, लेकिन ये रिलीवेंट होता हैगा। देयर आर प्लेथरा ऑफ जजमेंट अवेलेबल ऑन दिस पॉइंट की क्लासिफिकेशन के लिए हम इसको रेफर कर सकते हैं। ओके, सो एक्सप्लेनेटरी नोट आपको ये बता के चलता हैगा। नाउ let us understand the different advance rulings issued by pronounced by different authority of advance ruling on this issue. So we will be analyzing first कि उन लोगों ने क्लासिफिकेशन कैसे किया, फिर रेट उन लोगों ने क्या बताया और किस प्रिंसिपल पे बताया। ओके, सो देयर आर टोटली 3 advance rulings pronounced till date on this issue by different advance rulings. We will be covering all that. First, in October 2018, Kerala Authority of Advance Rulings in case of modern foods. इस केस के अंदर एसएससी ने आर्ग्यू किया कि मेरा जो प्रोडक्ट है पराठा, अनलिमिटेड प्रोडक्ट और लिमिटेड प्रोडक्ट दोनों, दिस क्वालिफाइज एज ब्रेड, एंड मुझे 97 के अंदर जो एग्जेम्पशन है वो मिलनी चाहिए। अथॉरिटी ने बोला दैट 1905 के अंदर जो प्रोडक्ट है वो ब्रेड है। आप कॉमन पार्लेंस टेस्ट जब लगाते हैं तो आप पराठा को ब्रेड नहीं कहते हैं। आप किसी को मार्केट में भेजिए, उसको बोले कि पराठा लेके आओ, कभी ब्रेड लेके नहीं आएगा, क्योंकि हम कॉमन पार्लेंस में इसको ब्रेड कहते नहीं आएंगे, विच इज वेरी ट्रू। ओके, सो दे सेड दैट सिंस इट इज नॉट कवर्ड इन 1905 और किसी और हेडिंग के अंदर, देयरफॉर 2106 वुड बी एप्लीकेबल ऑन इट। तो जनरल 2106 के अंदर आ जाएगा। और जो एग्जेम्पशन की नोटिफिकेशन हैगी एंट्री नंबर 97, वो एग्जेम्पशन देती है ब्रेड को विच आर कवर्ड इन हेडिंग 1905। और क्योंकि इसमें अथॉरिटी ने क्लासिफाई कर दिया इस प्रोडक्ट को 2106 के अंदर, तो एग्जेम्पशन नहीं मिल सकती। इंटरेस्टिंगली अथॉरिटी ने बोला इस पे जीएसटी रेट 18% लगेगा। ओके, अनदर एडवांस रूलिंग इन केस ऑफ आईडी फूड्स जून 2020 जो रिसेंट आई है, जिसमें रोटी चपाती वर्सेस पराठा का इशू आया पूरा का पूरा। इसके अंदर एसएससी ने आर्ग्यू किया कि मेरा प्रोडक्ट 1905 के अंदर कवर होता है एंड applicable GST rate on it would be 5% because this product is akin to chapati or roti. So authority held that कि आपका प्रोडक्ट 1905 में कवर नहीं होगा। क्यों सर? इंटरेस्टिंगली यहाँ पे कॉमन पार्लेंस टेस्ट नहीं लगाया। यहाँ पे उन लोगों ने बोला कि 1905 के अंदर रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स कवर है, प्रोडक्ट्स विच आर अवेलेबल फॉर इमीडिएट कंजम्पशन वो कवर हैंगे। पेस्ट्री, केक, ब्रेड, ऐसे प्रोडक्ट कवर है। और आपका प्रोडक्ट क्योंकि आपको कंज्यूम करने से पहले गर्म करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है, देयरफॉर दिस वुड नॉट बी कवर्ड अंडर हेडिंग 1905. On analyzing the applicable GST rate on it, they have applied the common parlance test and held that the parantha is not referred as roti or chapati and therefore 5% rate would not be applicable on it. In case of Signature International, third advance ruling, Maharashtra Authority of Advance Ruling, they held that the product paratha is akin to chapati and 5% GST rate would be applicable on it.
उन्होंने बहुत सारे टेस्ट अप्लाई किए, कॉमन पार्लेंस टेस्ट, एंड यूजर टेस्ट, ट्रेड पार्लेंस टेस्ट एटसेट्रा। यहां पे क्लासिफिकेशन इशू डिबेट ही नहीं हुआ। एप्लीकेंट ने बोला मेरा प्रोडक्ट 1905 के अंदर कवर है और उस पे अथॉरिटी ने डिबेट नहीं किया। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू आवर कमेंट्स, heading 2106 covers food preparation and 190 cover bread. Now we need to understand that whether the product paratha can be called as bread or not. The product paratha is not defined in GST law, GST rate notification, exemption notification, ना ही आपका ये customs tariff act में define है। But this is the form of Indian bread. This is the form of Indian bread. If you'll ask from a chef कि सर ये क्या है, he'll say you it's a form of Indian bread. हमने अपने लोकल पार्लेंस में इसको रोटी, चपाती, पराठा, जो मर्जी बोल दिया, नान, कुलचा, but these are forms of Indian bread. तो क्वेश्चन अराइजेस कि जो टर्म ब्रेड लिखी हुई है ये कस्टम्स टैरिफ एक्ट के अंदर, उसको हम अंडरस्टैंड करें, एनालाइज करें कॉमन पार्लेंस टेस्ट लगा के, या फिर हम उस पर टेक्निकल टेस्टिंग लगाएं। टेक्निकल टेस्टिंग लगाने का मतलब उसकी टेक्निकल एनालिसिस करें कि वर्ड का टेक्निकल मीनिंग क्या है। इट्स अ इशू, इट्स अ लीगल इशू टू बी आंसर्ड कि प्रेफरेंस पहले किसको दी जाए, टेक्निकल मीनिंग को या कॉमन पार्लेंस को। I'll come back to this question, but before that I would want to discuss the erstwhile judicial precedent on this issue. Under the VAT regime there were so many judgments on this issue, काफी हाई कोर्ट्स की हैंगी और दोनों तरफ की हैंगी। प्राइमरी इशू वहां पे ये होता था कि रोटी को ब्रेड कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट had held that roti and paratha are referred as bread. Madras High Court held roti cannot be referred as bread. Karnataka Commissioner, the authority had applied the common parlance test and held that roti cannot be referred as, chapati cannot be referred as bread. Divergent views were there. But the point is कि ये जजमेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है वैट रिजीम के। इन माई हम्बल व्यू दीज जजमेंट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। वाई सर? सर दीज जजमेंट्स आर प्रोनाउंस्ड कंसीडरिंग द स्टेट टैरिफ। वहां पे जो लेजिस्लेचर था उसने स्टेट लॉ बनाया है, उस स्टेट को ध्यान में रखते हुए। वहां पे लोकल पार्लेंस में हम इस टर्म को कैसे कहते हैं, वहां पे उसका टेक्निकल मीनिंग वही हो सकता है। रोटी का रोटी, चपाती का चपाती, पराठा का पराठा। जैसे कि हम पंजाब में रोटी को चपाती नहीं कहते, हम फुल्का कहते हैं। महाराष्ट्र में इसे भखारी कहते हैं। तो स्टेट वैट लॉज ड्राफ्ट हुए थे स्टेट को ध्यान में रखते हुए, जबकि कस्टम्स टैरिफ एक्ट इज फर्स्ट अडॉप्टेड बाय इंडिया, सेकेंडली इट इज प्रिपेयर्ड कंसीडरिंग द इंटरनेशनल ट्रेड, इट इज नॉट प्रिपेयर्ड कंसीडरिंग द डोमेस्टिक ट्रेड। इंडिया के कंटेक्स्ट में नहीं बनाया गया ये। Therefore, the judgments which were pronounced by the Honorable High Courts in different cases would not be relevant in my humble view under the GST regime, unless and or until कि कुछ प्रिंसिपल डिराइव कर रहे हो, जैसे कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने बताया, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने बताया।
कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन विच जो हमने अभी छोड़ा था कि टेक्निकल मीनिंग को हम प्रेफरेंस दे या फिर हम कमर्शियल अंडरस्टैंडिंग को प्रेफरेंस दे, ट्रेड पार्लेंस को, कॉमन पार्लेंस को. इन दिस रिगार्ड आई वुड लाइक टू ask this question from you itself. What you think? Because कस्टम्स टैरिफ एक्ट को जिसने बनाया होगा, जो लेजिस्लेचर वहां बैठे होंगे, उन्होंने इस HSN को बनाया होगा कंसीडरिंग द इंटरनेशनल ट्रेड. सो इट इज ऑब्वियस दैट इट इज नॉट प्रिपेयर्ड इन इंडियन कंटेक्स्ट. So I would want your views also in the comments section that what you think, जो view मैं आपके साथ share करने वाला हूं. The view is we cannot read the term bread in a very restrictive manner. अरे हमारे यहाँ पे इस प्रोडक्ट को हम लोग ब्रेड कहते हैं, सॉरी चपाती कहते हैं. हमें नहीं पता कि इसको हम दूसरी कंट्रीज में क्या कहते हैं, वहां पे इसका कुछ और नाम होगा. तो जो लेजिस्लेचर वहां बैठा हुआ जिसने HSN बनाया है और हमको अडॉप्ट करना है, या तो हम वर्ड पूरे के पूरे जो अडॉप्ट कर रहे हैंगे उसको चेंज करें, जो परमिशंस की मिलती है नहीं मिलती वो एक अलग डिबेट है. बट द पॉइंट इज दिस कि हमने इसको वैसे अडॉप्ट किया है और जिस लेजिस्लेचर ने उसको बनाया है उसने इंटरनेशनल ट्रेड को ध्यान में रखते हुए बनाया है. देयरफॉर मेरे हिसाब से, इन माय हम्बल व्यू, टेक्निकल मीनिंग हमें पहले समझना पड़ेगा प्रोडक्ट का. एंड देयर आर फ्यू जजमेंट्स अवेलेबल ऑन दिस पॉइंट दैट व्हेनेवर द टैरिफ covers a particular technical meaning, a technical product with a technical name, that in that case preference is required to be given to the technical analysis over the commercial understanding. और यहां पे technical meaning in my humble view is adopted by the legislature under the World Customs Organization, जिन्होंने भी इसको बनाया है, जो भी लेजिस्लेचर से हमारे. So the point is that Indian roti, chapati, paratha, these are Indian breads. Therefore, this would be covered under 1905 and 2106 would not be applicable on it. Now, since we have classified this product under 1905, let us understand the GST rate applicable on it. Yes, one may say that the product paratha is not roti or chapati and therefore it would covered under 453. The another view is also possible as held by Signature International. That is a discussion which required the common parlance understanding. Okay. But उससे ऊपर एक क्वेश्चन हैगा कि एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में जो ब्रेड के लिए एग्जेम्पशन मिली है, क्या वो एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? क्या कहती है वो एग्जेम्पशन जो हमने डिस्कस की थी? द एग्जेम्पशन प्रोवाइड्स कि ब्रेड नॉट एल्सवेयर स्पेसिफाइड, सॉरी, ब्रेड नॉट सर्व्ड फॉर कंजम्पशन एंड पिज्जा ब्रेड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म not served for consumption? In Signature International, Maharashtra Authority of Advanced Ruling said that this term means served for immediate consumption. Simple शब्दों में ready to eat products. So the question is कि क्या पराठा ready to eat होता है? The answer is no. बिकॉज अभी हमने देखा कि इसको कंजम्पशन करने से पहले आपको गर्म करना पड़ता है. इट रिक्वायर्ड टू बी हीटेड बिफोर कंजम्पशन. देयरफॉर इफ वी अडॉप्ट दैट रूलिंग, दो इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द डिपार्टमेंट, द अदर पर्सन्स ऑल्सो,
देयरफॉर उसका रेफरेंस हम नहीं ले सकते, बट अगर वो हम इंटरप्रिटेशन फॉलो करते हैं तो इन दैट केस पराठा इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी. बट दिस इज ओपन फॉर डिस्कशन. दिस इज ओपन फॉर डिस्कशन, क्योंकि आप ये भी कह सकते हैं इसके अंदर सर्व फॉर कंजम्पशन मीन सर्व फॉर कंजम्पशन, और जो फ्रोजन फॉर्म में दिया गया वो भी सर्व फॉर कंजम्पशन किया गया था. सो इंटरप्रिटेशन इज रिक्वायर्ड, एंड आई थिंक मोर देन दैट क्लैरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड कि गवर्नमेंट की इंटेंशन क्या है इसको लिखने की इस तरीके से, बिकॉज दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ टैरिफ एक्ट, दिस इज द रेट नोटिफिकेशन पार्ट. और अगर हम जीएसटी काउंसिल के मिनट्स को देखते हैं वहां पे भी इसको डिबेट नहीं किया गया. तो इंपॉर्टेंट ये है कि वो इस शब्द का मतलब, इस एक्सप्रेशन का मतलब बताएं, क्लैरिफाई करें. ओके, नाउ जस्ट बिफोर कंक्लूडिंग लेट अस डिस्कस इन स्पीड जो भी एडवांस रूलिंग थी उसमें जो हमने जितना भी डिस्कस किया हमारे व्यू के हिसाब से क्या रहेगा. केरला अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग इन केस ऑफ मॉडर्न फूड्स, वहां पे उन लोगों ने बोला कि जो प्रोडक्ट हैगा that is not bread, paratha is not bread, and therefore exemption would not be applicable, and this we have discussed in detail. In our view, this is a bread and exemption मिलेगी नहीं मिलेगी वो आपका डिपेंड करता है एक्सक्लूजन क्लॉज पे जो मैंने आपको बताया. In case of कर्नाटका अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, द अथॉरिटी हेल्ड दैट कि आपका यहाँ पे रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं और ब्रेड आपका रेडी टू ईट नहीं होता है. सॉरी, पराठा इज नॉट रेडी टू ईट, एंड देयरफॉर इट वुड नॉट कवर्ड इन 105 and 2106 would be applicable. Interestingly, the authority in this order, in their order, they said rule 2A of the general interpretation rules, which is a statutory principle of interpretation, would not be applicable, क्योंकि पराठा टैरिफ एक्ट के अंदर दिया नहीं गया रहेगा. बट अगर हम ये कहते हैं कि पराठा इज अ ब्रेड, तो हम रूल 2A को अप्लाई कर सकते हैं. और रूल 2A कहता है कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट अनफिनिश्ड फॉर्म में है जिसके अंदर उसके एसेंशियल कैरेक्टर अवेलेबल हैं, वो फिर भी वही प्रोडक्ट कहलाया जाएगा. तो इन आर केस द प्रोडक्ट पराठा, जिसको सिर्फ आपको गर्म करना है खाने से पहले, वो गर्म करने से पहले भी पराठा ही कहलाया जाता है. उसके अंदर सारे एसेंशियल कैरेक्टर हैं. सो बाय अप्लाइंग रूल 2A, दिस वुड स्टिल बी कवर्ड विद इन द कैटेगरी ऑफ ब्रेड अंडर 1905. एंड द लास्ट पॉइंट, द लास्ट एडवांस रूलिंग, सिग्नेचर इंटरनेशनल, वहां पे इस चीज को डिटेल्ड डिस्कस नहीं किया गया कि क्लासिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो वी आर नॉट डिबेटिंग ऑन दिस पॉइंट. वन मोर पॉइंट आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर, दैट इन इंटरनेशनल ट्रेड दिस प्रोडक्ट इज क्लासिफाइड एज ब्रेड. वी हैव इंटरनेशनल जुडिशियल प्रेसिडेंट ऑन दिस इशू. जब यूएस के अंदर गुड्स इंपोर्ट होते हैं, वहां पे कस्टम्स अथॉरिटीज ने नान को, पराठा को, चपाती को क्लासिफाई किया हैगा एज अ ब्रेड. वी हैव मेंशन्ड दोज रूलिंग्स इन आवर आर्टिकल. द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेम इज गिवन बिलो द वीडियो. यू कैन रीड दैट ऑल्सो. जितनी भी जजमेंट्स मैंने आपसे डिस्कस करी हैं, प्रिंसिपल डिस्कस के सब आर्टिकल में अवेलेबल हैं, तो यू कैन रेफर दैट ऑल्सो. So we have judicial precedent, international judicial precedent. I think that is more important than the judgments which are pronounced by the high courts under the VAT regime, because वो state VAT law के context में थी. Okay. Now to conclude this entire discussion, we are having a view that product paratha is a bread first. Second, it is requested to the GST Council to clarify the classification first. Second, whether paratha can be called as plain chapati or roti or not.
And third, the most important part, what is the meaning of the term, the expression served for consumption? This must be clarified by the GST Council. Thank you.